بات چل رہی تھی روح کی. کہا جاتا ہے کہ روح کہتے ہیں کہ صاحب روح گھروں میں نہیں آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جمعرات جمعہ پیر کے دن کا بھی ذکر ہے کہ پیر کے دن بھی آتی ہے, مبارک راتوں میں بھی آتی ہے. مگر روح کا آنا اور جسم کا آنا یہ دو الگ الگ چیز ہے. یہ دو الگ الگ چیز ہے. جسم کا چل کر کے آتا ہے. مان لو اگر میں آپ کے گھر پہ گیا تو آپ کے گھر پہ ہوں, اس گھر پہ نہیں ہوں. وہاں گیا تو وہاں رہوں گا تو یہاں. مگر روح کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں. روح ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتی ہے. روح ایک وقت میں کئی جگہ موجود ہو سکتی ہے. ہاں یہ سچ ہے کہ بعض کی روحیں قید ہوتی ہیں, مگر اللہ اپنے فضل و کرم سے مومنین کے روحوں کو ان کے درجوں کے مطابق ان کو پرواز عطا فرماتا ہے, جانے کا موقع عطا فرماتا ہے, انہیں صورتیں عطا فرماتا ہے. اپنے فضل و کرم سے مومنین کے درجوں کے مطابق انہیں باقاعدہ کچھ مقامات پہ جانے کی اجازت ہوتی ہے. تو مومنین کی روحیں الگ ہیں, کافرین کی روحیں. ارے بھائی آپ اپنے گھر میں ہو, گھر آپ کا ایک ہی کمرہ, چھوٹا سا گھر ہے, اور آپ جیل میں ہو. جیل میں ایک کمرہ ہی رہتا ہے, اور آپ مجھے بتاؤ جیل والے کمرے میں گھر والی فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ بھائی کمرہ تو وہ بھی ہے نا, اور آپ یہاں بھی کمرے میں دن بھر رہتے ہو, وہاں بھی دن بھر کمرے میں رہنا ہے, پھر آپ کو فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ تو مجرم ہونا اور چیز ہے. مجرم ہونے کی وجہ سے اگر اسے کسی بڑے علاقے میں رکھا جائے گا تو بھی اسے وحشت ہوگی, ڈر ہوگا, خوف ہوگا. قید تو قید ہے نا بھائی, چاہے ایک کمرے میں ہو چاہے کسی بڑے حال میں ہو. قید تو قید, اور آزادی آزادی ہے. تو یاد رکھیں مومنین کی روحیں اور درجہ رکھتی ہیں. کافرین جو کافروں کی روحیں ہیں ان کا معاملہ اور ہے. رہا سننے کا معاملہ تو وہ ظالم ہے جو کہتے ہیں روحوں کا ثابت نہیں. اور میں بہت مشہور بات بتا دوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر ہو گئی, کفار مار دیے گئے, 70 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا, 70 لوگ ان میں قتل ہو گئے, اور ایک کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا. کنواں بڑا گہرا تھا, ابو جہل کی لاش کو بھی اسی کنویں میں ڈالا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے باہر کھڑے ہو کر کے ایک ایک کا نام لے کے پکار رہے ہیں, اے فلاں, میں نے کہا تھا نا, اے فلاں, کیا تم نے دیکھ لیا کہ اسلام سچا دین ہے؟ اس طرح سے میرے آقا ان بڑے ہوئے کفار سے باقاعدہ باہر کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. اتنے میں صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا, بھلا یہ سنتے بھی ہیں؟ کیا فرمایا؟ بھلا یہ, اور کس کے بارے میں کہا؟ بدر کی میں لڑنے جو آئے تھے کفار, ابو جہل وغیرہ, ان کی لاش کنویں میں ڈالی گئی تھی, اور حضور انہی سے بات کر رہے تھے. صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ اس سے بات کر رہے ہیں, بھلا مردے سنتے بھی ہیں؟ جواب تھا میرے آقا کہ ہاں تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو جب کافر کے مردے سن سکتے ہیں تو ایمان والوں کے مردوں کا کیا کہنا؟ سبحان اللہ. میرے آقا نے ایک حدیث بتا دیا کہ جب یہ ابو جہل و ابو بدترین لوگ جو اللہ کی راہ میں ایمان والوں کے قتل کرنے کے لیے اپنے مشرکانہ عقیدے کے ساتھ آئے تھے, ایمان والوں کے خلاف آئے تھے, شرک پہ تھے, کفر پہ تھے, مر گئے ایسی حالت میں, جب یہ سن رہے ہیں تو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں, جو اللہ کی رضا کے لیے مارے جائیں, جو دین کی بقا کے لیے مارے جائیں, جو سربلندی کے لیے مارے جائیں, جو اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے مارے جائیں, جو دین کے تحفظ میں مارے جائیں, جو اللہ کی رضا میں دنیا سے جائیں, ان کا سننا ان سے زیادہ ہوتا ہے. روحیں ہی سنتی ہیں, روحیں جواب دیتی ہیں, روحیں دیکھتی بھی ہیں. بہت سارے واقعات روحوں کے درجنوں کیا سینکڑوں کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں. مگر جس کتاب کا میں نے خاص طور سے ذکر کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انتہائی مشہور زمانہ کتاب ہے, شرح الصدور, امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کو خاتم الحفاظ کہا جاتا ہے, اور یہ وہ عظیم بزرگ ہیں جنہوں نے 70 مرتبہ جاگتے ہوئے حضور پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے. اور ان کی پوری کتاب میں روحوں کا ہی واقعہ لکھا ہوا ہے, وہ مرحومین کا, قبر کا, قبر والوں کا, ان کی ملاقات کا, حتیٰ کہ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھا کفن دیا کرو. بھائی وہ کفن کی کیا ضرورت
फरमाते हैं कि उनको अच्छा कफन दिया करो। फरमाया हाँ, ये आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं तो फख्र करते हैं, मिलते हैं। जी हाँ, ये जिस्म का मिलना और है, रूह का मिलना और है, बिना शुबहा मिलते हैं। अरे इंशाअल्लाह ईमान के साथ दुनिया से जाने के बाद सबसे पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार होगा। निकलते वक्त उम्मीद है सरवरे कायनात का दीदार हो। कब्र में जाएंगे, फरिश्ता मुझसे पूछेगा, आपसे पूछेगा, मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस मर्द के बारे में क्या कहता था। उलमा फरमाते हैं कि सरकार कब्र में तशरीफ ले आएंगे, ये निगाहों से पर्दा हटा दिया जाएगा और हम सरकार का जलवा देख लेंगे। जागते हुए नहीं देख पा रहे। और उसके बाद इंतकाल के बाद बताओ निगाह किसकी तेज हुई, आपकी कि उनकी? यही नहीं साहब, और सुनिए, फरिश्तों को आप देखते हैं? नहीं देख रहे। हालांकि सब हर कोई फरिश्तों को देखेगा। फरिश्तों को देखे बगैर आपको मौत ही नहीं आएगी। मौत आएगी जब फरिश्तों को आप देखेंगे। रूह निकालने फरिश्ता आएगा, कई फरिश्ते उसके साथ में आएंगे, आपकी रूह निकाली जाएगी, आप देखेंगे। तो आप अभी नहीं देख रहे हैं, मगर जब रूह निकालने का वक्त आएगा तो इन्हीं आंखों से फरिश्तों को, तो अब आप बताइए किसने देखा? रूह ने कि बदन ने? फिर उसके बाद जब कब्र में डाला जाएगा तो फरिश्ते फिर कब्र में आएंगे, आपको जिंदा करेंगे, बिठाएंगे, सवाल करेंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अरे वो फरिश्ते हैं, अल्लाह के रसूल है, वो किरामन का जो है मुनकर नकीर है, वो आप उन फरिश्तों को देखेंगे। अभी नहीं देख पा रहे हैं मगर देखेंगे। अच्छा, आपने इब्लीस को देखा है? नहीं देखा, देखोगे। इब्लीस भी जिंदा है, मौत नहीं है, उसे मौत क़यामत के वक्त आएगी, देखोगे। शैतान खबीस भी आपके मौत के वक्त आएगा और बहकाने की कोशिश करेगा। माँ की शक्ल में आएगा, बाप की शक्ल में आएगा, उस्ताद की शक्ल में आएगा, दोस्त की शक्ल में आएगा और गुमराह करने की कोशिश करेगा। तो आप दुनिया में ही अकीदा बना लो, हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन थामा, बाप रोके या न रोके, हम सबसे जुदा हो सकते हैं, मदीने के ताजदार से जुदा नहीं हो सकते। क्योंकि जब रूह निकलने का वक्त आएगा तो शैतान माँ बाप उस्ताद की शक्ल में आएगा, कहेगा मेरी बात मान ले और अल्लाह का इनकार कर दे। तो जो दुनिया में दीन का मजाक बनाते थे, किसी की भी बात मान ले कहीं चलती है, वो तो बहक जाएंगे। अगर जो कहेंगे नहीं गलत तो गलत, वो बाप कहे तो भी गलत, माँ कहे तो भी गलत, उस्ताद कहे तो भी गलत, वो इंशाअल्लाह ताला वहां भी कामयाब हो जाएंगे। तो आदत यही से बना लो कि हम उस्ताद के कहने पर नहीं, हमारे दीन के मुताबिक वो बताता है इसलिए मानते हैं। पीर के कहने पर नहीं चलते। पीर जब तक हमारे दीन के बारे में सही बताता है तब तक मानते हैं, वरना पीर की कोई हैसियत नहीं। अगर वो दीन के खिलाफ चला जाए तो चाहे किसी की औलाद हो, पैरों के ठोकर में आ जाएगा वो। अगर दीन के मुताबिक है तो एक मामूली बंदा भी हमारे सर का ताज है। मेरे अजीज, रूह देखती है, रूह सुनती है, रूह बोलती है और रूह को मौत नहीं है। रूह आलमे अम्र से, रूह घरों पे आती है और इसके अलावा भी बेशुमार इसके मुशाहिदात हैं। हमने सिर्फ अरवाह सलासा का एक वाकया बताया था। एक कब्रिस्तान से कासिम तानातवी साहब दारुल उलूम देवबंद पहुंच गए और झाड़ा का फैसला करा दिया। हालांकि ऐसे दर्जनों वाकयात हैं, एक वाकया और सुन लीजिए लतीफे के तौर पर। एक साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो जाने के बाद एक जमाने के बाद अपने घर पे आए, अपने घर पे आए और खाली हाथ नहीं आए, मिठाई लेकर आए। क्या लेकर आए? मिठाई लेकर आए। अपने बीवी बच्चों को मिठाई दिया भी, उन्होंने खाया भी। कोई ख्वाब की बात नहीं है कि हाँ ख्वाब आपने कहा, नहीं, मिठाई लाए, दिया उन लोगों ने और कह दिया खबरदार किसी को बताना मत, रोज आऊंगा मिठाई लेकर आऊंगा। किसने कहा? जो मर गए थे, जो मर गए थे। अब यही नहीं कि एक मरतबा लाए थे, दोबारा फिर मिठाई लेके आ गए, फिर दिया, उन्होंने खाया, बच्चों ने खाया, बीवी ने खाया। बताना मत किसी को, मैं फिर आऊंगा मिठाई लेकर। आते रहे, मिठाई देते रहे। एक दिन राज फाश हो गया, किसी तरह से बात खुल गई कि भाई अलग अलग मिठाइयां कहां से आ रही हैं, आपके तो शौहर है भी नहीं, कहां से आ रही है। आखिरकार जब राज फाश हुआ तो जनाब आना बंद कर दिए। मैंने अपने अंदाज में ये बात की है, किताब अरवाह सलासा में
लिखा हुआ है। तो तुम्हारा मुर्दा अपने कब्र में हलवाई की दुकान खोल के बैठा था, अलग अलग मिठाइयां लेके आ रहा था। तुम मामूली इंसानों के बारे में ये बात कह रहे हो, और इनके सदक़े में अल्लाह ने कायनात बनाई है। हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में ये मानते हैं, जिनकी जिंदगी इंतहाई लाजवाब है, जिनका लम्हा लम्हा इंतहाई लाजवाब है। हम उस शख्सियत के बारे में बात करते हैं जो अल्लाह के मुकर्रम और महबूब बंदे हैं। जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो कहते हो कहाँ लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे जिस तरह से तुम्हारे कब्र से मिठाई आ सकती है, ऐसे ही अल्लाह वालों के यहाँ से रहमत इलाही भी आ सकती है। तो अपने मुर्दों को जब मानना हो तो सब मान लोगे, और जब अल्लाह वालों की मानने की इबादत का इनकार कर दोगे। अभी और भी लिखा है, और सुन लीजिए। हालांकि मेरा मिजाज खत्म हो गया बयान करने का इस तरह का, मगर है बहुत सारे वाक़यात। किताब का नाम अरवाह सलासा है। क्या नाम है? आज की रात मुसलमान कब्रों पे जाएंगे कब्रों पे आप लोग, आप उस्ताद हैं, भाई हैं, बाप हैं, जो भी इंतकाल कर गए, जाएं, सबके लिए दुआ करें, हमारे लिए भी, अपने लिए भी, तमाम मुसलमानों के लिए। आप कब्रों पे जाएं, कब्र पुजवा है ये लोग, कब्र को पूजते हैं ये लोग। इस तरह की बातें हमारे लोगों को कही जाती है। मुसलमान खुदा के सिवा किसी के सामने नहीं झुकता, मुसलमान किसी की जो है पूजा नहीं करता, अल्लाह की परस्तिश करता है। हाँ, कुछ नादान मुसलमान हैं जो सजदा वजदा करते हैं, तो ये हराम है। क्या है? इसे हम कुफ्र नहीं कहते। हम जानते हैं कि हमारा भाई नादान है, वो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के ही झुक रहा है, मगर हराम है सजदा करना, कब्र पे हराम। बाकी सारी चीजें, फातिहा पढ़ना, पार्टी की तरफ बैठना, या बहुत से चूम भी लेते हैं, तो इसे हराम कहना या शिर्क कहने वाले कान खोल कर सुन ले। किताब का नाम अरवाह सलासा है। उस किताब में लिखा हुआ है कि एक साहब की कब्र पर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाकी लतीफे की बात है, ये किताब बहुत मशहूर किताब है। अरवाह सलासा में लिखा है कि एक साहब की कब्र पर लोग गए और मिट्टी उठा के खा ली, या कब्र से मिट्टी उठा के घर ले गए, तो उनकी बीमारी ठीक हो गई, खुजली ठीक हो गई। क्या ठीक हो गई? या जो भी बीमारी थी, वबा थी, वो कब्र से मिट्टी ले गए तो ठीक हो गई। फिर क्या हुआ? पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि उनके कब्र से मिट्टी लाओ तो शिफा मिल जाती है। लोग गए और खुद कब्र की मिट्टी लाए, उनके जो बेटे जिंदा थे, दोबारा टाली मतलब बाकायदा मिट्टी डाले कब्र पर, फिर मिट्टी सब लेके चले गए, फिर डाले कब्र पर मिट्टी, फिर लोग लेके चले गए, फिर डाले, गुस्से में आ गए, कहा तुम्हारी तो करामत हो गई, हमारी फजीहत हो गई। लोग मिट्टी बार बार लेके आ रहे, अगर अब की बार लेके गए तो खबरदार ऐसे ही पड़े रहोगे, मिट्टी नहीं डालूंगा मैं। खैर जिंदे ने मुर्दे को धमकी दे दी। आप बोलचाल में क्या बोलेंगे? जिंदे ने मुर्दे को। बात यहाँ खत्म नहीं होती। मुझे बताओ, तुम अपने मुर्दों के बारे में ये लिख रहे हो कि वहां कब्र से मिट्टी लेके गया तो शिफा मिल गई, और हम मदीने वाले आका के बारे में कह दें, अजमेर वाले सरकार के बारे में कह दें, निजामुद्दीन औलिया के बारे में कह दें कि वहां का फूल खाओ तो शिफा मिल जाएगी, तो शिर्क है। और मिट्टी खाने वालों, औलिया अल्लाह के अज़मतों का इनकार न करो, अल्लाह ने उन्हें बुलंद मकाम अता फरमाया। तो तुम तो मिट्टी खाने पे आ जाओ, तो उसे करामत बता दो। बाकायदा अरवाह सलासा करामत की किताब है, और करामत की किताब में ये बात लिखी गई है, तो गोया तुम्हें ये बात मंजूर है, तो तुम्हें अपने लोगों की ये बात मंजूर है, अल्लाह के नेक बंदों की बातें मंजूर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है कि अगर सिद्क दिल से औलिया अल्लाह की बारगाह में कोई हाजिरी दे तो इंशाअल्लाह उसकी मुराद पूरी हो जाएगी, सिद्क दिल से, पाकीज़ा दिल से। और अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की पूरी हो चुकी है। हजारों यहाँ पे ऐसे बैठे होंगे जिनकी बेशुमार मुरादें पूरी हुई होंगी और होती हैं, अल्लाह ने उन्हें वो ताकतें अता फरमाई है। लेकिन जब हम ये बातें कहते हैं, कहते हैं ये तो अजीब बात है, बाबा वाली बात है। अपने कब्र की बात आए तो मिट्टी खा लो, अपने लोगों की बात आए तो कब्र से मिठाई लेके मान जाओगे, अपने लोगों की बात आए तो कब्र से मुर्दा आके मदरसे में सुला करा दे। ऐसे एक नहीं दर्जनों वाकयात हैं जो इन लोगों ने अपनी किताबों में लिखे हुए हैं। इन्होंने फूल भी खाए हैं कब्र पे, इन्होंने कब्र की मिट्टी भी खाई है, इन्होंने कब्र पर बाकायदा चादर भी डाला है। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं? बड़ा मौज पे जाते हैं, चप्पल बाहर ही निकाल लेते हैं ना, और बड़े अदब से नंगे पैर जाते हैं ना, और जब लौटते हैं तो उल्टे बदल लौटते हैं। ये अदब है, ये क्या है? अदब है। जिस तरह से जिंदगी में अदब है, ऐसे ही विसाल के बाद भी अदब है। कि जो हमारे इस्लाम ने बताया कि कब्र से दूर खड़े हो, ये अदब की वजह से दूर खड़े हो कब्र से, अपने बाप की कब्र पे जाए, या अपनी माँ की कब्र पे जाए, या उस्ताद की कब्र पे जाए, या किसी अल्लाह वाले की कब्र पे जाए, बुजुर्ग की कब्र
تشریف فرما ہوں تو کیا ہماری اور آپ کی اوقات ہے کہ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں؟ ارے وہ سرکار نظام الدین اولیاء کے خلیفہ ہیں بھائی، ان کے غلاموں کی مثال نہیں ملتی۔ سرکار نظام الدین جس درجے پر ہیں، اگر میں ایسے بتاؤں کہ سرکار نظام الدین کے غلاموں کے کئی درجے کے بعد اعلیٰ حضرت کا نمبر آتا ہے، تو جب اعلیٰ حضرت ان کے غلاموں میں آتے ہیں تو پھر مولانا روشن کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو اگر وہ ظاہری حالت میں تشریف فرما ہو جائیں تو ہماری ہمت، ہماری اوقات ہے کہ ان کے پاس بیٹھیں۔ تو ادب کیا تھا بتائیں؟ دور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، سر جھکا کے کھڑے ہو۔ یہی حال ہر اولیاء اللہ کے مزار پہ ہونا چاہیے۔ جاؤ تو دور کھڑے ہو، اجمیر جاؤ، بغداد جاؤ، کہیں بھی جاؤ، دور کھڑے ہو۔ یہ ادب ہے، یہ اعلیٰ قسم کا ادب ہے۔ افسوس لوگ عجیب شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ویسے نہیں پتا فرمائے، تو آپ الٹے قدم روکتے بھی ہیں اور ننگے قدم جاتے بھی ہیں۔ اس پر بھی معاملہ کرتے ہیں، کہاں جو کیا کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، ایسی تعظیم کیوں کرتے ہو؟